Before starting my speech, I would like to thank our beloved Sunita Didi. She is the founder of our school. I would like to thank our managing director, sir, that has given us a platform to share what we are thinking or what we have, our own thoughts, to share them with this whole world. I, Shoaib Ahmed, principal of Kids 7 Public School, starting the speech today. Be the change what you wanted to see in the whole world. जो भी बदलाव आप इस दुनिया में देखना चाहते हैं, सबसे पहले उस बदलाव को अपने अंदर लेकर आना होता है. These are only the needle tip of a fraction of the wealth that Mahatma Gandhi has given us, so that this country will prosper throughout its lifetime. And it is his efforts, his principles that enables us to live in a free and independent India. If I am standing here and I can share whatever there is inside me, that is just because of the efforts that had put by Gandhiji and the freedom fighters. Why we have to remember him? Why we need to celebrate these days here? As a teacher, if we are going on a training, let's say after graduating, if we want to have a BA degree, the first thing that you have to study in philosophies is of Gandhian philosophies in education. What Gandhiji had started has, we can say that is just the foundation of the education system that we are providing to our students now. He has started Nai Taaleem. The slogan was Nai Taaleem for each and every individual, whether it belongs to the highest level of the society or belongs to the lowest level of society. He has treated everyone as equal. According to his Nai Taaleem, he has divided education in 3 different levels, let's say, to improve mind, body, and what resides inside is soul. I will discuss it in bilingual language, okay, later on. Before moving further on these aspects, I would also like to introduce our second Prime Minister of India, Lal Bahadur Shastri. He has also followed, and he was one of the disciples of Mahatma Gandhi. Why I am saying this? When I was studying somewhere. So what I had found, when Lal Bahadur Shastri was in 10th standard, and he was studying in the government school at that time. Once he had attended the seminar or lectures given by Gandhiji, in which he asked the youth of India to favor non-cooperation movement. Means we don't have to take anything from the foreigners or Britishers, we can say. We don't have to follow them. So Lal Bahadur Shastri has incorporated this thing from Gandhiji and then leave his education, leave his school at that particular time and join Indian National Congress. So both Gandhiji and Lal Bahadur Shastri are also sharing the same birthday, that is 2nd October, and that is today. So the main thing is that this is 158th birth anniversary of Mahatma Gandhi. But still, we don't know the reality or the actual thing that is given by Mahatma Gandhi. Why?
because we have made our life so busy, we start using the social platform or virtual platform to spread something that is not worthy of sharing to anyone else. I was once in Science Conclave 3 that was organized by Indian Institute of Information Technology in Allahabad in 2010. Almost 10 years has passed from that moment. When I was attending that is the congregation of the Nobel laureates and more than 2,000 scientists and delegates all over the world, and no part of India has left from where the students are not attending that seminar. In that particular seminar or conclave, someone asked, the speaker was from Iran at that particular moment, and someone from India asked him a question, why India is not prospering, why we are unable to generate a system so that India can prosper as well. What that Iranian has answered was surprising to us. That is, he said that you people already have a Gandhian system, you people are not following that. That's why you are suffering from all these drawbacks what you are suffering today. And this thing I had heard 10 years ago. And from a foreigner. Okay. But what we have learned is, हिंदी में एक कहावत होती है कि हम ज़्यादातर उसी में करते रहते हैं कि घर की मुर्गी दाल बराबर हो जाती है. Same thing we are applying here also. If someone spreads some rumors about Gandhi, every individual in the whole world is having positive and negative things in it. सबके अंदर पॉजिटिव और निगेटिव चीजें होती हैं. हमें क्या करना होता है कि पॉजिटिव भी तो देखना होता है, लेकिन हमने आज क्या बना दिया है कि सिर्फ हम निगेटिव चीजों को देखते हैं. जो मैंने सबसे शुरू में बोला था कि बी द चेंज यू वांट टू सी इन द होल वर्ल्ड. क्यों गांधी जी ने ऐसा बोला? एक बार एक माँ अपने बच्चे से बहुत ज्यादा परेशान थी. वो गुड़ खाता रहता था, कहीं भी छिपा के रखती थी, गुड़ निकालता था और खा लेता था. अब गांधी जी फेमस थे बहुत, कोई भी समस्या होती थी, उनकी सबसे खास अच्छी ये बात थी कि कोई सिक्योरिटी यूज नहीं करते थे कभी भी, और जो भी उनसे मिलना चाहता था उससे डायरेक्टली मिलते थे. उनके पास आने के लिए किसी को परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती थी. तो वो भी अपने बच्चे को लेकर गए उनके पास में. ले जाने के बाद क्या हुआ कि वो गांधी जी से शिकायत करने लगी कि गांधी जी मेरा बेटा इस तरह गुड़ खाता है और आप बहुत ऊंचे पोस्ट पे हैं इंडिया के अंदर, और ये सब लोग मानते हैं, आप इसे समझा देंगे तो मान लेंगे. तो गांधी जी ने वापस भेज दिया और कहा कि आप मेरे पास 7 दिन बाद आओ. मदर थी, बच्चे को लेकर चली गई. 7 दिन बाद वापस लौटी. तो 7 दिन बाद वापस आने के बाद गांधी जी ने बच्चे को समझाना शुरू कर दिया कि बेटे गुड़ खाना, इतना ज़्यादा गुड़ नहीं खाना चाहिए, नुकसान देगा. बहुत सारी चीज़ें बच्चे को समझाई. जब उस बच्चे की माँ ने पूछा गांधी जी से कि आप ये बात तो 7 दिन पहले भी बता देते, तब क्यों नहीं बताया? तो गांधी जी मुस्कुराते हुए बोले कि 7 दिन पहले मैं भी बहुत ज़्यादा गुड़ खाता था, मैंने 7 दिन के अंदर छोड़ा और तब जाके मैंने इस बच्चे को बताया कि गुड़ खाना बुरी बात है. तो इसीलिए उन्होंने एक बात कही थी कि जो भी बदलाव हम दुनिया में देखना चाहते हैं वो सबसे पहले हमारे अंदर होना चाहिए. अब आ जाते हैं हम अपने एजुकेशन लेवल के ऊपर, जिसमें हम माइंड, बॉडी और सोल की बात करते हैं. एक हमने लाइन सुनी हुई है कि ए हेल्थी माइंड रिसाइड्स इन अ हेल्थी बॉडी. कि अगर शरीर स्वस्थ है तो दिमाग भी स्वस्थ रहेगा, और अगर दिमाग स्वस्थ है तो वही हमारी आत्मा को संतुष्टि पहुंचा सकता है. इसीलिए उन्होंने जो लेवल रखा, जो एजुकेशन का पैटर्न दिया, वो एक्टिविटी बेस्ड दिया.
एक्टिविटी बेस्ड में क्या कि उन्होंने हैंडीक्राफ्ट को बढ़ावा दिया बहुत ज़्यादा, कि एजुकेशन थ्रू हैंडीक्राफ्ट, जो हथकरघा होते हैं, हाथों से बनाई जाने वाली चीज़ें होते हैं, खेल खेल में बच्चे को पढ़ाना भी था और इस तरह से चीज़ें सिखानी भी होती थी। तो इसीलिए आज जो पैटर्न हमारा चला हुआ है वो एक्टिविटी बेस्ड उन्हीं पुरानी चीज़ों से है जो कभी से उन प्रिंसिपल्स के अंदर थे, जो कभी से उन फिलोसफीज के अंदर थी, आज भी सेम हम उसी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, नाम बदल देते हैं बस उन चीज़ों के, लेकिन जो इफेक्टिवनेस होती है वो आज भी ऐसे के ऐसी बनी रहे। अब ऐसे टीचर अगर मेरे अंदर कुछ चीज़ें बेहतर हैं तो ही मैं उसे आगे पहुंचा सकता हूं, क्योंकि हम गांधी जी को क्या मानते हैं, एक लीडर, इसके अलावा हम एक अच्छा टीचर भी मानते हैं। जो एग्जाम्पल मैंने अभी दिया था कि एक टीचर जब अपने बच्चे को समझाता है, यानी उसके जो मदर जिसने पैदा किया उसे वो ट्रस्ट कर रही है उस टीचर के ऊपर। क्यों ट्रस्ट कर रही है? क्योंकि वो ये जानती है कि उस टीचर के पास ऐसी चीजें हैं कि मेरे बच्चे को उससे बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। तो उसका यकीन हम लोगों के हाथ में होता है कि बनाए रखना है, उनका यकीन नहीं टूटना चाहिए। दूसरी बात, जिस दिन हम एजुकेशन फील्ड में आ जाते हैं, जब टीचर की हमने पोस्ट को ज्वाइन कर लेते हैं, तो उस दिन हमें पेड़ बन जाते हैं, और पेड़ हमेशा दूसरों को फल देने के लिए होता है, खुद अपना फल कभी किसी पेड़ को खाते नहीं। सबसे बड़ी चीज होती है कि हम वो पेड़, वो वृक्ष बन जाते हैं कि जिसको हमेशा फल देते रहना पड़ता है। और ये एक एजुकेशन सिस्टम का सबसे पहला मोटिव होता है। और देखिए, पेड़ फल देकर ही खुश रहता है, वो लहराता है, उसके ऊपर कलियां खिलती हैं, फिर वो फल बन जाता है। उस फल को जब लोग खाते हैं, क्यों पहुंचा रहा है वो फल को, कि जब वो फल खाया जाएगा उसके अंदर वो बीज भेज रहा है। वही बीज जब पूरी दुनिया में लगाए जाएंगे, तो जो आप पेड़ हैं, आप इतनी ज्यादा जगह में फैले हुए होंगे जितना एक कॉमन पेड़ या कॉमन इंसान कोई फैल नहीं सकता है कभी भी। और यही फिलोसफी हमें गांधी जी से मिलती है, यही फिलोसफी हमें लाल बहादुर शास्त्री से मिलती है, कि उन्हें सबसे छोटे से छोटे को ऊपर लेके आना होता है। ठीक है, एक मूवी बनी हुई है साउथ की, अगर टाइम लगे, उसमें पसंगा 2 नाम दिया हुआ है। तो वहां पे जो बच्चे परफॉर्म नहीं करते हैं, उनके पेरेंट्स को बुला के शिकायत करते हैं, तो शिकायत करते हैं, तो टीचर है, काउंसलर है, टीचर नहीं है, तो वो एक बात बताता है कि देखिए, जो पढ़ने लिखने वाला बच्चा है ना, वो तो पढ़ लेता है, अगर हम उसे पढ़ा पाए जो कमजोर है, तो हम एक मजबूत समाज का निर्माण कर सकते हैं। अगर हम सबसे कमजोर ईंट को भी क्या करें, बदल दें और उसकी जगह मजबूत ईंट लगा दें, तो क्या कोई इमारत को कभी हिल सकती है? कभी नहीं हिल सकती। कभी सबसे पहले यही चीजें होती है कि हमें वो पेड़, जिस दिन हमें पेड़ बन चुके हैं, अब फल देना, फलना फूलना वो आप लोगों के हाथ में है। एटलीस्ट मैं चाहता हूँ कि उन सबकी लाइफ हिस्ट्रीज को पढ़िए और अप्लाई कीजिए। जब हम किसी को कोई बात समझाना चाहते हैं, यानी खुद समझना चाहते हैं, तो सबसे अच्छा तरीका है कि उसे सामने वाले को समझाना शुरू कर दीजिए, और जैसे आप समझाना शुरू करेंगे उसको, तो आप खुद बेहतर तरीके से समझ जाएंगे। ये बात मैं प्रैक्टिकली कह सकता हूँ कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो जब हम स्टूडेंट थे तब क्लियर नहीं हुए, अब क्लियर होते हैं जब हम टीचर हैं। बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं ऐसे उन किताबों के अंदर, जब हम पढ़ते पढ़ते बच्चों के लिए पढ़ रहे हैं, और तब अच्छा ये टीचर हमें इसलिए पढ़ाते थे, अच्छा इसका मतलब ये था। तो जब हम चीज़ों के पास पहुंच जाते हैं, तो फिर दूसरा हमारे लिए करना है, हमें अपने लिए कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। एक पेड़ को हमेशा सींचेगा कौन? क्या पेड़ कोई किसी पानी के पास जाते देखा? नहीं जाएगा। पानी का रास्ता खुद में खुद बन जाता है उस पेड़ के पास में, बशर्ते उस पेड़ ने अपनी कीमत बहुत खूबसूरत बना रखी है।
में छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, और ये चीज़ें हमने हिस्ट्री हम इसीलिए पढ़ते हैं, अतीत हम इसीलिए रखते हैं कि उनकी अच्छी चीज़ों को लेकर चले, बिकॉज वी कांट चेंज आवर पास्ट बट वी कैन क्रिएट अ गुड प्रेजेंट फॉर द फ्यूचर। हम एक अच्छा प्रेजेंट बना दें अगर, तो हिस्ट्री अपने आप बदल जाती है। ठीक है, अगर इतिहास बदलना है तो वर्तमान बदल दीजिए, इतिहास बदल जाएगा। तो विद दीज वर्ड्स I would like to congratulate you all one more time and happy Gandhi Jayanti and Lal Bahadur Shastri birthday also to you people, and hope you will be the change that you wanted to see in the whole world. Thank you.